راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ اپنا من پسند پروگرام راہ زندگی سماعت فرما رہے ہیں آپ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں۔ محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ اپنا ہر دن نئی روشنی، نئی امید اور نئی کامیابی کے ساتھ جئیں، خدا تعالیٰ کے قربت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ سبھی سننے والوں کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ دن اپنے خاندان کے ساتھ خوشی اور شادمانی سے بھرا ہوا ہو۔ اضحیٰ کا دن نہ صرف خوشی منانے کا دن ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک بڑی ہی اہم بات کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی خدا تعالیٰ سے محبت اور وفاداری کی یاد دلاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس حد تک محبت کرتے تھے، اس حد تک وفادار تھے، فرما بردار تھے کہ خدا تعالیٰ کے حکم پر وہ اپنی سب سے قیمتی چیز اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ہر سال جب ہم اس دن کو مناتے ہیں تو ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ آیا کہ میں بھی جب اس دن کو منا رہا ہوں تو میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز کیا ہے، اور کیا اگر خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اسے ان کی رضا کے لیے قربان کر دوں تو کیا میں اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اب ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں قیمتی چیز فرق ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے اس کی دولت بڑی قیمتی ہے، کسی کے لیے اس کی عزت جو اس نے معاشرے میں کمائی ہے بڑی قیمتی ہے، کسی کا وقت بڑا قیمتی ہے، اسی طور پر گھر بار اور بال بچے بڑے قیمتی ہیں۔ تو جو چیز ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے ہمیں اسے خدا تعالیٰ کی نظر کرنا ہے، خدا تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، اور اس طور پر زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر درجہ خدا تعالیٰ کا ہو، اولیت ہم اس کی ذات کو دیں، اور یوں ہم خدا تعالیٰ کی حضوری میں مقبول ٹھہریں جیسے حضرت ابراہیم مقبول ٹھہرے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سنیں اپنی برکت اور اصلاح کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم سماعت فرما رہے تھے، اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں بھی آزمائش آئی خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا وہ اپنی قیمتی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جب انہوں نے اپنے بیٹے تک کو بھی قربان کرنے سے گریز نہ کیا تو خدا تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ سرفراز کیا، سربلند کیا۔ جو وعدہ انہوں نے ان سے کیا تھا کہ آپ کی نسل میں سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اب حضرت ابراہیم کے اس عمل کے بعد اس پر مہر ہو گئی تھی اور وہ اس کے حقدار قرار پا گئے تھے۔ تو سامعین، جب بھی ہم خدا تعالیٰ کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، پورا اترتے ہیں، تو ہمیں پہلے سے زیادہ سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے ابھی پروگرام میں مل کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور سنیں یہ بڑا ہی بابی کا موقع ہے اپنے خاندانوں کے ساتھ۔ جب آپ اس دن کو منا رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ PCRM جو آپ کا خاندان ہے اس سے بھی جڑے ہونے کا آپ ثبوت دیں، فون کال اور SMS کی صورت میں خط بھیج کر۔ تو آپ ہمیں خط بھیجیں گے اس پتے پر، پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کیجیے گا، نمبر ہے 031674775655۔ فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور YouTube چینل ہے PCRM TV۔ تو کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے اور ہماری خوشی کا، مسرت کا اور شادمانی کا باعث بنیے۔ ابھی بھی میرے پاس میسیجز موجود ہیں۔ رائے ولایت کھرل ساکی صاحب ہمیں میسج بھیجتے ہیں ننکانہ صاحب سے، اور آپ نے
जोशुआ जी की मेजबानी में प्रोग्राम सुनकर कहा है कि प्रोग्राम पसंद आया, शुरू की बातें कमाल की थी, कुदरत के करिश्मे सिलसिला अच्छा लगा, शुरू से आखिर तक प्रोग्राम कमाल का था। बहुत शुक्रिया आपका राय वलायत खरल साकी साहब। जावेद इनायत साहब हमें मैसेज भेजते हैं बरतानिया से। आपने प्रोग्राम सुना है उज़्मा यूनुस की मेजबानी में और कहा है कि इनका प्रोग्राम करने का अंदाज बहुत दिलकश है। इजहार के मौके पर गुफ्तगू बहुत खूबसूरत थी और इजहार से हमारे रिश्ते और हमारे ताल्लुक मजबूत होते हैं। तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत आपके लिए बरकत का बायस रहे हैं। जावेद इनायत साहब हमें दिली खुशी हो रही है आपका मैसेज पढ़कर और अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम राह जिंदगी इतने मुमालिक तक पहुंच रहा है, सामे हमारे बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद भी कहते हैं और चाहते हैं कि इजहार के ताल्लुक से जब आपको गुफ्तगू पसंद आई है तो आप इसका अमली इजहार करते रहें प्रोग्राम में मैसेज भेजकर। असद मुराद साहब हमें मैसेज भेजते हैं बलोचिस्तान से। प्रोग्राम सुना है आपने जोशुआ जी की मेजबानी में और कहा है कि ड्राई फ्रूट जैसी सेहत बख्श चीजों पर जो बातचीत हो रही थी वो बजा थी, बड़ी पसंद आई। वाकई हम नुकसानदेह अशिया पर पैसे खर्च करना पसंद करते हैं लेकिन सेहत बख्श अशिया पर खर्च करने से हिचकिचाते हैं। गुफ्तगू आपको अच्छी लगी है। तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत बायसे बरकत रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका असद मुराद साहब प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार करने के लिए। गुफ्तगू आपको पसंद आई है इसका इजहार करने के लिए। डॉक्टर जिशान सैफुल मलूक साहब का मैसेज हमारे पास मौसूल हुआ है जिनका ताल्लुक है आवाज रेडियो लिसनर्स क्लब साहिवाल से। कहती हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में हूँ, खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब हम भी खुदा ताला के शुक्रगुजार हैं आपकी सेहत की बहाली के लिए और दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता फरमाए। आपने प्रोग्राम सुना है जोशुआ जी की मेजबानी में और कहा है कि तिलावत कलाम मुकद्दस और हमदिया गीत और खतूत का सिलसिला बड़ा पसंद आया। भाई आकाश इमैनुअल साहब और उनके साथियों की मेजबानी में यूथ टॉक सुनने का मौका मिला, वो भी बड़ा पसंद आया। तमाम तर लिसनर्स के लिए दुआ करते हैं कि खुश और शाद रहें, खुशियां बांटते और समेटते रहें। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए और आपके मोहब्बत भरे मैसेज के लिए। वर्ल्ड रेडियो लिसनर्स क्लब चविंडा सियालकोट से हमें मैसेज भेजते हैं शफाकत बाजवा साहिब, अब्दुल्ला बाजवा साहिब, शाहम बाजवा साहिब, तैयब बाजवा साहिब, रिहा फातिमा साहिबा और मरियम शफाकत साहिबा जिन्होंने प्रोग्राम सुना है जोशुआ जी की मेजबानी में और कहा है कि प्रोग्राम में मैसेजेस शामिल किए गए, कुदरत के करिश्मे शामिल किया गया, यूथ फोरम सुनने को मिला, सारे सिलसिले बड़े ही अच्छे लगे। कहते हैं कि हमारी दुआ है ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। बहुत शुक्रिया वर्ल्ड रेडियो लिसनर्स क्लब से ताल्लुक रखने वाले सभी साथियों का और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि इसी तौर पर आप प्रोग्राम में शामिल होते रहें और अपनी राय का इजहार करते रहें। सामाईन, ईद का मौका है, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है मौसीकी के इस खूबसूरत से ट्रैक से लुत्फ उठाने का। तेरी दीद होवे साडी ईद होवे, आजा सजना ईद मना लईए। 2 दिन दी जवानी बस सजना ना शिकवियां विच गवा लईए। नवें सूट गल पावांगे, नवें सूट गल पावांगे, वे आजा माया चांद रात नू, होया जा ढोला चांद रात नू, होया जा माया चांद रात नू, सुबह ईद मनावांगे, होया जा माया चांद रात नू, सुबह ईद मनावांगे, होया जा ढोला चांद रात नू, सुबह ईद मनावांगे। खुशी रज के मनानी है, खुशी रज के मनानी है, हो इस वारी मैं ते ढोले, ओ इस वारी मैं ते मये, ओ इस वारी मैं ते ढोले ईद कट्ठे मनानी है, ओ इस वारी मैं ते मये ईद कट्ठे मनानी है, ओ इस वारी मैं ते ढोले ईद कट्ठे मनानी है।
चोले नू रंग कीता चोले नू ओ ईद दी नमाज पढ़ के ओ ईद दी नमाज पढ़ के ओ ईद दी नमाज पढ़ के गल मिलने ढोले नू ओ ईद दी नमाज पढ़ के गल मिलने ढोले नू ओ ईद दी नमाज पढ़ के गल मिलने ढोले नू फुल्लां वांगू दिल खिलना फुल्लां वांगू दिल खिलना चस आनी उदों ईद दी जी चस आनी उदों ईद दी ओ चस आनी उदों ईद दी जदों माईए सानू गल मिलना ओ चस आनी उदों ईद दी जदों ढोले सानू गल मिलना वे चस आनी उदों ईद दी जदों माईए सानू गल मिलना। सामाइन, ड्रामा चिरागेरा सुनने का वक्त है। पिछली बार हमने हजरत एलिया के हालात जिंदगी के हवाले से आखिरी किस्त सुनी। अलीशा नबी को हजरत एलिया का जानशीन मुकर्रर किया गया खुदा ताला की तरफ से, और आज हमें सुननी है हजरत अलीशा की जिंदगी के हवाले से पहली किस्त। कुछ होंगी माजी की झलकियां और कुछ होंगी नई बातें। सिलसिले को सुनकर ही सब कुछ जानते हैं। कौन है? कौन है आप? ये चादर क्यों दी मुझे? सुने, ठहरे जरा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। क्या मुझे बुला रहे हो बेटा? हैं? ओहो, मेरे मालिक एलिया नबी, माफी चाहता हूं, मैंने तो सोचा भी नहीं कि आप हैं। मेरे बुजुर्ग उस्ताद, मेरे बाप। हाँ बेटा अलीशा, ये मैं ही हूं। आपने अपनी चादर मेरे ऊपर डाल दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें खुदा के नबी की हैसियत से वही काम करना होगा जो मैं करता था। गो इस बात पर अलीशा बहुत हैरान था, लेकिन उसने इस बुलाहट को दिल से कबूल कर लिया और उसी दिन से एलिया नबी के पीछे हो लिया। दोनों कई दिनों तक नबियों के मदरसों में जाकर एलिया नबी के पैरोकारों को मिलते रहे। एलिया नबी के शागिर्द ये समझ गए थे कि एलिया उनसे जुदा कर दिए जाएंगे। हर जगह पैरोकारों ने अलीशा नबी को समझाया कि वो अपने आका एलिया को छोड़ दे, क्योंकि उसका आका एक बहुत बड़े खौफनाक मौजज़े से उठा लिया जाएगा, और क्या मालूम उसके साथ क्या हो जो उस वाक़े के वक्त एलिया नबी के साथ हो। लेकिन अलीशा अपने इरादे से बाज न आया और खुदा के इन दोनों बंदों ने सफर जारी रखा। आखिरकार वो आबाद इलाकों से दूर निकल आए। एलिया नबी का वक्त नजदीक आ रहा था। एलिया ने भी अलीशा को आजमाया। उन्होंने कहा, तू यहीं रुक जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरदन के पार भेजा है। लेकिन अलीशा ने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की कसम, मैं हरगिज तुझे ना छोड़ूंगा। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। जब वो दरियाए यरदन पर पहुंच गए तो एलिया नबी ने अपनी चादर को बल देकर दरिया पर मारा तो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और ये दोनों पानी के दरमियान खुश्क जमीन पर चलते गए। जब वो दोनों बिल्कुल महफूज दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो एलिया नबी ने मुड़कर अलीशा से कहा, अलीशा मेरे बेटे, अपने जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे मालिक, मेरी एक दरखास्त है। मुझे आपकी ताकत की जरूरत है। मुझे अपनी रूह का दुगना हिस्सा अता करें। क्या मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे सबसे बड़ा बेटा बाप से विरासत में दुगना हिस्सा लेता है। अपनी रूह का दुगना हिस्सा मुझे दें। मेरे बेटे, बड़ी मुश्किल दरख्वास्त है। अगर तुम मुझे अपने से जुदा होते देखो तो तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। क्या तुम समझ गए हो? हाँ, मैं समझ गया हूं। यूं ही वो दोनों इकट्ठे बातें करते हुए सफर करते रहे। अचानक आग का रथ और आग के घोड़े आसमान से जाहिर हुए और दोनों को जुदा कर दिया। एलिया नबी रथ में सवार हो गए
और एक बगुले में ऊपर आसमान पर अलीशा की आंखों के सामने उठा लिए गए। रथ के नजरों से ओझल होने तक एलिया देखता रहा। फिर उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। अरे देखो, ये जमीन पर क्या है? ये तो मेरे आका एलिया की चादर है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे मालिक एलिया ने अपनी रूह का दुगना हिस्सा देने का वादा किया था, इसलिए मैं उसकी चादर को यर्दन के दरिया पर मारूंगा और कहूंगा, खुदावंद एलिया का खुदा कहां है? अच्छा, तो तुम सब मुरीद यरू से आए हो? क्यों? अलीशा, हम अपने आका एलिया नबी के उठाए जाने को देखना चाहते थे। हाँ, हमें पता था कि खुदा उन्हें उठा लेगा। हम यहाँ इस टीले पर ही रुक गए थे। ज्यादा नजदीक जाने से हम डर रहे थे। वैसे यहाँ से हमने बहुत कुछ देख लिया था। हाँ, हमने एलिया नबी और आपको दरिया के किनारे खड़े देखा था, और दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला मोजज़ा भी, जब एलिया नबी ने अपनी चादर दरिया पर मारी थी। फिर आप दोनों पार चले गए। उसके बाद हमने आपको नहीं देखा। उसके बाद हमने आपको अकेले आते देखा अकालिशा। हमने आपको दरिया यर्दन पर अपनी चादर मारते देखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिया नबी ने किया था। और फिर दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और आप खुश जमीन पर चलकर पार आ गए। ओह अकालिशा, हम जान गए हैं कि एलिया नबी की ताकत और नबूवत आप में आ गई है। अब आप हमारे आका हैं। ठीक है भाइयों, हम सब मिलकर खुदा की खिदमत करेंगे। लेकिन आका अलीशा, हमें एलिया नबी के बारे में बताएं। वो कैसे आसमान पर उठाए गए थे? हम इकट्ठे जा रहे थे कि आग के घोड़ों के साथ आग का एक रथ जाहिर हुआ और बहुत तेज आंधी भी। यहां से हमने खासी दूर उन पहाड़ियों पर बहुत बड़े बादल देखे थे और बादलों में रोशनी का एक गोला तेजी से उतरते देखा। आग का रथ हमारी तरफ आया और हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। आका एलिया उसमें सवार हो गए। वो सिर्फ मुझे अलविदा ही कह सके और बगुले ने उन्हें ऊपर उठा लिया। खुदा ने उन्हें मौत के बगैर उठा लिया। उनकी सिर्फ ये चादर ही रह गई है। लेकिन आका अलीशा, रथ कहीं गिर ना पड़ा हो? हाँ आका अलीशा, मैं भी यही सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा की रूह ने उन्हें किसी दूसरी जगह में उतार दिया हो। बिल्कुल नहीं, खुदा उन्हें ले गया है। वैसे मैं कुछ परेशान हूं। हाँ, हो सकता है कि खुदा की रूह ने उन्हें ऊपर उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आका, क्यों ना हम तसल्ली कर ही लें। हम 50 हैं, हम उन पहाड़ियों में इधर उधर तलाश करते हैं। नहीं, मत जाओ। आका अलीशा, हम बहुत परेशान हैं, हमें जाने दें। हाँ आका अलीशा, 2-3 दिन में हम उन्हें हर जगह तलाश कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या आपको आका एलिया की कुछ फिक्र नहीं? अच्छा, तो जाओ फिर, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। अच्छा तो मेरे दोस्तों, तुम वापस आ गए। हाँ आका अलीशा, हम यरहू में आपके पीछे आए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अच्छा हुआ मेरा पैगाम तुम्हें मिल गया और तुम यहां यरहू में पहुंच गए। आओ बैठ जाओ। क्या तुम्हारे लिए पानी मंगवाऊं? नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाइयों, क्या खबर लाए हो? अलीशा नबी, इन 3 दिनों में हमने हर जगह एलिया नबी को तलाश किया, मगर उनका कोई निशान नहीं मिला। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उनकी तलाश में ना जाओ? हाँ आका अलीशा, आप ठीक ही कहते थे। आका अलीशा, शहर के बुजुर्ग आपको चश्मा पर ले जाने के लिए आए हैं। आपके कहने के मुताबिक वो प्याला और नमक भी ले आए हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें कहो मैं अभी आता हूं। आका, आप कहां जा रहे हैं?
यहाँ के बुजुर्ग मुझे शहर के चश्मा पर लेकर जा रहे हैं। वो बताते हैं कि उसका पानी खराब है, जमीन को बेकार बना देता है। भाइयों, आओ फिर चलते हैं। अलीशा नबी, यही वो चश्मा है। देखने में तो ये पानी ताजा और ठीक ही है, लेकिन इससे हमारी फसलें तबाह हो जाती और हमारे जानवर इसे पीकर बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। अच्छा, नमक का प्याला मुझे दो। ये ले जनाब। जनाब, इससे आप क्या करेंगे? देखो, मैं इसे खुदावंद खुदा के नाम पर इस पानी में डालता हूं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या वीरानी ना होगी। सामाइन, ड्रामा चिरागे राह हम सुन रहे थे और हजरत अलीशा जब फर्मा बरदारी में रहे हैं खुदा ताला की भी और अपने उस्ताद की भी, तो वही ताकत और कुदरत जो एलिया नबी में काम करती थी, वही ताकत और कुदरत अलीशा नबी में काम कर रही है। यूं कि उनके कहने से पानी थम जाता है, रास्ता बन जाता है और इसके साथ साथ कड़वे पानी में नमक डालने से वो मीठा हो जाता है। और ये नतीजा और ये फल वफादारी का है। और आइए, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है मौसीकी के इस खूबसूरत से ट्रैक से लुत्फ उठाने का। और हमें इस ईद पे सिर्फ गोश्त ही तकसीम नहीं करना, बल्कि मोहब्बतें, दुआएं, मुस्कुराहटें और अपना वक्त भी देना है। अपने पुराने दिलों को नई मोहब्बत से भरना है। और हमारी ये दुआ है कि इस ईद के मौके पर ना सिर्फ आप खुद खुदा ताला की मोहब्बत को महसूस कर सके, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाने का भी बायस बन सके। और प्रोग्राम के आखिर पर मैं अपनी और पीसीआरएम की सारी टीम की जानिब से सभी सामईन को ईद उल अजहा की ढेरों खुशियां मुबारक कहती हूँ। और हमारी दुआ है कि ये दिन आपकी जिंदगी में खुशी, शादमानी, बरकत और मोहब्बत लाने का बायस हो। आइए सामईन, झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। तौफीक बख्श दीजिए कि खुदावंद हम भी अपनी हर एक कीमती चीज से बढ़कर आपसे मोहब्बत करें और अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। आपको अपनी जिंदगी में अव्वलीन तरजीह दें, आपकी मर्जी को पूरा करें और इसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार करें, उनके काम आए, उनके जख्मों पर मरहम रखें और खुदावंद आपकी मोहब्बत उन तक पहुंचाने का बायस बने। पाक खुदा, हम आपकी हजूरी में इल्तिजा करते हैं अमजद खान साहिब के लिए, उनकी अहलिया जो आप में सो गई हैं। खुदावंद, ये आप ही का इंतज़ाम है और खुदावंद हम आपसे इल्तिजा करते हैं अमजद खान साहिब, इनके घराने, ख़ानदान, इनके बच्चों को इत्मीनान और सुकून अता कीजिए। खुदावंद, वो आपके इस इंतज़ाम को कबूल कर सके और आप ही की रहनुमाई में उस इत्मीनान के साथ जो आप अता करते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। खुदावंद, ईद के इस दिन पर मैं इल्तिजा करती हूँ अपने सभी सामईन के लिए, इनके घरानों और ख़ानदानों के लिए। खुदावंद, इनमें सुलह, मोहब्बत, इत्तेफाक और अमन हो। खुदावंद पाक खुदा, ये आपकी कुर्बत में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। इसी के साथ आपकी मेज़बान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। खुशियाँ बांटिए, अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।